A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of 11th class, today our topic is algae, and we have already completed chlorophyce or chlorophyta. Now we will start rhodophyta or red algae. The word um, rhodophyta is actually a Greek word. Rhodo means red and phyta means plant. These algae or red, uh, the important characteristic features of rhodophyta are: this is the ancient group of algae with about 5,000 living species. So this rhodophyta has about 5,000 species, living species. Presently, there are 5,000 species of rhodophyci. These are usually marine. Except few species which live in fresh water. For example, Batrachospermum. Batrachospermum is found in fresh water. Other species belonging to Rhodophyta are marine. As we already know, they are autotrophic. They prepare their own food due to presence of chlorophyll and other pigments. Mm, There is no motile or flagellated stage found in Rhodophyci or members of or species of Rhodophyci. उनमें वो मोटाइल या फ्लैजेलेटेड स्टेज मौजूद नहीं होता है. Their body is unicellular, filamentous, parenchymatous sheets or ribbon-like to complex multicellular forms. Like seaweeds, Geladium. Their cell wall possesses cellulose, pectic compounds, and certain mucopolysaccharides called phycocolloids. For example, agar. Agar is obtained from this red algae. Some red algae possess an incrustation of calcium carbonate over their walls. So they possess depositions of calcium carbonate over their walls. Their photosynthetic organelles are called chromatophores. Chromatophores, they have single or we can say unstacked thylakoids. Photosynthetic pigments include chlorophyll A, carotenoids, and phycobiolins. Phycoerythrin, that means red colored. Phycocyanin means blue colored pigment. The red color of algae is due to the abundant formation ऑफ फाइकोएरिथ्रिन. उनमें वो रेड कलर पिगमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन. इन्हीं की वजह से उनमें रेड कलर होता है. फाइकोएरिथ्रिन की ये प्रॉपर्टी है, ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू ग्रीन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. जो ये वेवलेंथ्स होती हैं इनमें शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं ब्लू ग्रीन में, और ये मैक्सिमम डेप्थ वाटर के मैक्सिमम डेप्थ तक पहुंच जाती है ये ब्लू ग्रीन लाइट. इसलिए रेड एल्गी वहाँ पाई जाती है, डीपेस्ट ओशंस में पाई जाती है, जहाँ कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर सकता है. ये इनकी प्रॉपर्टी है. इसमें जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू ग्रीन लाइट. इसलिए ये शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा डेप्थ तक पहुंच जाती है. ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये ज़्यादा डेप्थ में पाए जाते हैं जहां और कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है. जो ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, शैलो जो होते हैं इनमें स्पेशीज़, वो ज़्यादा रेड नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें जो फाइकोएरिथ्रिन सिंथेसिस कम होती है. दैट मीन्स उनमें ये पिगमेंट कम होता है. रिजर्व फूड इनमें होता है फ्लोरिड स्टार्च विच इज़ सिमिलर टू ग्लाइकोजन.
asexual reproduction takes place through a variety of spores in these members of rhodophyceae. अब जहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ताल्लुक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous. Male sex organ is called spermatangium or antheridium. वो नॉन फ्लैजिलेट मेल गेमेट प्रोड्यूस करता है जिसको स्पर्मेशियम कहते हैं. नॉन फ्लैजिलेटेड ये होता है स्पर्मेशियम. जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है, उसको कार्पोगोनियम कहते हैं. कार्पोगोनियम की एक रिसेप्टेकल, एलोंगेटेड रिसेप्टेकल होती है, रिसेप्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन उसका वो इलांगेट करता है इसको कार्पोगोनियम को, ट्राइकोगाइन. स्पर्मेशिया वाटर की मदद से ट्राइकोगाइन के टिप्स तक पहुंच जाते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन होती है. जो इनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो उस अटैच होता है प्लांट के साथ और वो एक नई स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं. कार्पोस्पोरोफाइट. अब हमारा है ब्राउन एल्गी और फियोफाइटा. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड which means phio means brown, phyta means plant. The important characteristics of Phaeophyceae are majority of species are marine, and at present 2000 species belonging to Phaeophyceae are known. इनमें जो ज़्यादा फॉर्म्स हैं Phaeophyceae में वो मैरीन हैं और इनमें अभी तक तकरीबन 2000 स्पेशीज़ डिस्कवर हुई हैं. यूनिसेलुलर फॉर्म्स इनमें नहीं होती है. जो इनकी बॉडी होती है वो ब्रांचड होती है, फिलामेंशियस होती है स्ट्रक्चर. लोअर फॉर्म्स में फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस और पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर्स हायर फॉर्म्स में होती हैं. फॉर एग्जांपल सार्गैसम इसमें आता है. ब्राउन एल्गी जो है इसमें आती हैं लार्जेस्ट एल्गी जो तकरीबन अप टू 100 मीटर टॉल होती हैं. गेट ब्राउन एल्गी दीज आर आल्सो कॉल्ड कैल्पस. उनकी हाइट 100 मीटर तक पहुंच जाती है. फॉर एग्जांपल माइक्रोसिस्टस है. प्लांट बॉडी जो होती है इसमें वो डिफरेंशिएट होती है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड लेमिना. जो ये होल्ड फास्ट होता है ये इसको अटैचमेंट देता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ. फॉर एग्जांपल जिसमें जैसे रूट्स होते हैं, रूट्स की वजह से प्लांट अटैच होता है. इसीलिए जो ये होल्ड फास्ट होता है ये इसको रूट का काम देता है. स्टाइप इज जस्ट लाइक स्टेम एंड लेमिना इज ए टाइप ऑफ लीफ विच कैरीज फोटोसिंथेसिस. लेमिना इनमें सैंपल होता है या डिवाइडेड होता है और उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस. जो लार्ज फार्म्स इनमें होते हैं उनमें आयर ब्लेडर्स होते हैं या आयर विजिकल्स होते हैं जो इसको बयोंसी देते हैं. बयोंसी मीन्स ये पानी पे फ्लोट कर सकते हैं. सेल वॉल जो उनका होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोस और पॉलीसेकेराइड्स और फाइकोकोलाइड्स फॉर एग्जांपल इनमें एल्गिनिक एसिड होता है, फ्यूकोडिन होता है या फ्यूसिन होता है जो इसको डेसिकेशन या इंजरी से बचाते हैं. इन फाइकोकोलाइड्स का काम यही होता है, ये इसको डेसिकेशन या इंजरी से बचाते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इंक्लूड क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स. तो अब इसका जो ब्राउन कलर है इसमें लार्ज क्वांटिटी में एक जेंथोफिल होता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन. इसमें एक पिगमेंट होता है जो रेस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर ऑफ एल्गी. रिजर्व फूड जो इसमें होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन स्टार्च जो एक कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड होता है इसमें एज रिजर्व फूड. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होती है वो
موٹائل اور نان موٹائل سپورز کی مدد سے انجام دیتے ہیں یہ سیکشول ریپروڈکشن میں ویریشن ہے وہ آئسوگیمی بھی ہوتی ہے ان آئسوگیمی بھی ہوتی ہے اوگیمی بھی ہوتی ہے آئسوگیمی کیا ہوتی ہے اس میں دونوں جو گیمیٹ میل گیمیٹ اور فیمیل گیمیٹ ہوتا ہے وہ مارفالوجیکلی اور فزیولوجیکلی سملر ہوتے ہیں ان آئسوگیمی میں جو گیمیٹس ہوتے ہیں وہ سملر ہوتے ہیں اسٹرکچرلی وہ سملر ہوتے ہیں لیکن ان کا سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے اور بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک گیمیٹ لارج ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مائکرو گیمیٹ اور میل گیمیٹ اور دوسرا گیمیٹ جو ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مائکرو گیمیٹ اور میل گیمیٹ اب تھرڈ ون از اوگیمی اوگیمی میں لارج فوڈ لیڈن نان فلیجلیٹڈ فیمیل گیمیٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایگ بولتے ہیں یا اوسپیئر بولتے ہیں اور جو میل گیمیٹ ہوتا ہے اس کو اینتھروزائڈ بولتے ہیں وہ سمال بھی ہوتا ہے اور موٹائل بھی ہوتا ہے اب یہ ان کے سیکچول ریپروڈکشن کے بارے میں تھا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل ہم نیا ٹاپک اٹھائیں گے